Hello and welcome to AAFT 24/7. I'm your host Aditi Joshi, and today we are celebrating the day one of GFFN, and I have the pleasure of speaking with the man himself who is like, he is a multi-talented person. Just now we were having a conversation and he told me like he's an advocate, he's a director, he's an author by profession. So welcome, sir. We welcome Dr. Divakar Goyal to AAFT 24/7. How are you feeling, sir? It's very good. Always a pleasure to attend the events in Marva Studio. Dr. Sandeep Marva is a very old friend for decades, and I have the pleasure to be the life member of your almost all the bodies. Yes, sir. Writer Association or film or journalist and all. And every time I find something new when I come here. I teach management, I teach law, I teach aviation. Oh, wow. Across the globe. Yes. And I am the HR consultant with ICAO Montreal. Oh, wow. And I am the only Indian with the designation of human performance technologist with the IATA Switzerland. Wow, that's great. So, sir, just now we're celebrating the 18th Global Film Festival. So, you attended the fest and you saw all the happenings around the campus. How are you feeling? How was your feeling when you saw everything? And what do you have to say about that? I want to say one thing that what students should take from here. Yes. Basic focus of attending a conference or an event is what takeaway we are going to give to the students. Any speaker coming here, and what makes the event 18 different from the 17. I attended almost last 3-4 years. Yes. Every event should have something unique because two students are not the same. I teach last more than 3 decades. I was faculty for Narsee Monjee Institute, Bombay. I am a faculty for NU Singapore, for Zurich Business School. And what I see among students, you should have a spark. Yes, definitely. If you are going to be in the film industry, I have got very old association with the film industry, with the Bollywood. Yes. My mentor over, you are not knowing the name, but you should know. Yes. Naushad Ali, Oh, wow. a great music director. Oh. Gulzar Saab, a Yeah, great of writer. course, so we have They are not only writer, poets, film actors and directors, they are friend to me. wow. Because with the family of Javed Saab, Shabana ji, Baba, Tanvi, Shaukat Apa is not there now, Yeah. Kaifi Saab is not there. It's a family. Yes. Last Great names in 40 the music years. industry. They are the names I learned from them. Yes. Oh, wow. As a poet, I am basically a bureaucrat, 85 batch, and work with the central government. Still, I am the inquiry officer for all airports of the country. And what this global film festival, as a writer, I give meanings to the word. You say global. Yes. You need to crystallize this global word into reality. Why it is named as global? Number one. Yes. Film. You should know what is film. Yeah. Very few students, they research on the words. Words have got great meaning. And we give meanings to the words. If I say Well God is said, sir. nowhere, Yes. you can read God is now here. Isn't it? It depends on the perspective. Depend on your perspective, and there is one thing among students, what is your perception? Yes. Like, how do you see the world? How do you see this things? global film festival, why it is festival? Because we are celebrating it, I guess, all from people all around the world. The big And what names are message coming. you want to give to the students Okay. from this festival? Yes. Film is a very big word. You see the actor is also in the film, writer is also in the film, spot boy is also in the film. When I see a shooting, I was at Bombay Airport, HRAT for 13 years, through tenure I was there, Bombay. I saw many shootings. Shyam Benegal was a very close friend. Vinay Shukla is there, his films are there. So I have seen very minutely how the films are made, number one. Number two, my friends who are writers and all, I have seen how they write, the songwriters. I have got my friends who are music composers, right from the days of Lakshmikant Pyarelal and other people, his son also. So how they compose the music, and what is the, you see, the backbone of a film. Yes. It's the You music. see, what you see the film on the screen is not the film actually. The film is naturally what is made behind the screen. Yeah. What is the message a director wants to give? Now, Madhur Bhandarkar, you see, some people are lucky also. Madhur Bhandarkar is quite lucky.
इफ़ यू आस्क हिम, ही स्टार्टेड ए वेरी पैटी, वो कैसेट होती है ना उसको, हाँ, उसे इंटरव्यू में पूछना, अच्छा, वो कैसेट आया करती थी, उसको सेल करता, तो वो आती थी ना, वो लोग कैसेट किराए पे लेते थे, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर. oh, And Madhur Bhandarkar made, you see, one thing you should remember as a student, nothing succeeds like success. If you are successful, everybody say, "Arey, he is a gem." If I got 29 books, so some of my books are bestseller across the world. So when my books are bestseller, they say, "Arey, he is a good writer." Something is there when I am praised by the people who are renowned people, they say, "Arey, that man has told Dr. Divakar Goyal is a great writer." So a perception goes, "Arey, he must be great because so and so person has told." So you have to, first thing is you need to love yourself. definitely. Many people, many students I have seen, they don't love themselves. If you ask me one question, I ask you, how much you think about yourself during the day? Hardly 25%. 70% in your life you think about others. That's true. That is the irony. You should love yourself. And loving yourself is not an easy task. It is the most difficult love. I do agree, sir. Loving yourself is the most difficult. My books are there on that. I sell 3 lakh package across the world. So first love is to yourself, and your love will lead you towards perfection. That's a beautiful advice, and If you love a person, you find that girl is the most beautiful girl, wow, most intelligent girl, most intellectual girl, because you love her. Similarly, when you say, "I love myself," then you need to be the most beautiful, you need to be the most intelligent, you need to be the most intellectual, yes, sir. you need to be the brilliant student. But do you stand before a mirror, ask yourself, "I am beautiful." The mirror image says, "Sorry, you are not." Because you can't tell lie to your own conscience. But you love yourself, so you need to make all qualities in your personality. Exactly. A day should come when your mirror image should say, "Yes, I am beautiful." Beautiful is a word which can't be generalized, which can't be specific. For me, a person can be beautiful appearance-wise. I can tell you some people in the film industry, people say Aishwarya is beautiful. I say no. People say Madhuri Dixit is beautiful. I say no. I interacted with them. I had very good association with them because I could not find intellectualness, intelligence, and more humanity, इंसानियत. आप एक सेलिब्रिटी बन गए. How many times your heart beats for the cause of a spot boy, a cameraman, a helper? You should need to be a good इंसान. इंसानियत पहले आनी चाहिए, तब खूबसूरत बनेंगे आप. Ah, खूबसूरती आपकी तभी तक आगे जाएगी जब आपके अंदर इंसानियत है. wow. आप सेलिब्रिटी हैं, ब्यूटीफुल हैं, कितने साल? 15 साल, 20 साल. शबाना जी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज हैं, वो आज भी ब्यूटीफुल हैं 75 की एज में. जावेद साहब मोर देन 80, ही इज स्टिल वेरी हैंडसम गाय बिकॉज ही मेड हिमसेल्फ एज हैंडसम. विनय शुक्ला कितना अच्छा लिखता है, उसका रोज फेसबुक में भेजता है, लाइनें लिखता है, उसमें डेप्थ कितनी है. एक दिन में आदमी नहीं बनता. दूसरा मैसेज मैं तुम लोगों को देना चाहूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, ऑलवेज वेलकम फेलियर्स. तुमने एक लाइन चुन ली, सिनेमाटोग्राफी चुन ली, या स्क्रीन प्ले राइटिंग चुन लिया, या आपने डायरेक्शन चुन लिया, आपने प्रोडक्शन चुन लिया. इतनी फील्ड हैं आजकल, 10-15 फील्ड हैं फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे स्पेशलाइज कर सकते हैं. लेकिन हाउ मच यू आर वेडेड टू दैट. अगर आप स्क्रीन पे राइटर, मेरा नॉवल है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे लिखा जाए, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. डायलॉग राइटिंग इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. यू नीड टू, शबाना जी से पूछना, या मेरी दोस्त नंदिता दास है उनसे पूछना, वो जब एक करेक्टर को प्ले करती हैं तो पहले उस करेक्टर से बात करती हैं रियल लाइफ में. द एक्टिंग, अगर आप कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को देख लिया एक्टर को, उससे हमने सीख लिया. एक्टर का मतलब है जो आपको दिया गया रोल, उस रोल में अपने आप को ढालना, अपने आप को भूलना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं अदिति नहीं हूँ.
अदिति को चाहिए वो सोचे कि मैं अदिति नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ. बिल्कुल. You got my point? Yes, She sir. should forget about her person. She should only give emphasis to her role. Yes. What role has been given to you? आपको एक फिल्म में रोल दिया गया कि भाई मेरे को जो है वो एक मदर का रोल करना है. अभी लास्ट टाइम आपकी स्टूडियो में मिला था किससे, वो हम लोग की आर्टिस्ट थी ना, जो अभी कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था ना कुछ, उसमें मिला था मैं कुछ. लिटरेरी फेस्ट में. हाँ, उसमें मिला था मैं कुछ लोगों से. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो डॉक्टर मरवा के ऑफिस में बैठे थे, तो बोले मैं हम लोग में वो थी. मैंने कहा आपने तो उसमें रोल बूढ़े का किया था. कहने लगे साहब मैं उस समय 20-22 साल की थी, मुझे रोल दिया गया 45 ईयर्स का. अच्छा. तो मैं 45 को अपने आप में महसूस करना पड़ा. वाह. तो फिल्म इंडस्ट्री में आप जब लर्निंग कर रहे हैं, आप सब चीज़ों को लर्निंग करिए. एक चीज़ और सीखिए आप कि जब आप फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप एक्टर हैं तो यू शुड नो सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, बिल्कुल. उसके लेंस से क्या दिखाई जाता है. यहाँ बैठने के बजाय वहाँ जाके देखो. मैं एविएशन में हूँ, मैं रडार पे बैठता हूँ जाके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ, देखने के लिए रडार कैसे फंक्शन करता है. फायर क्रैश टेंडर होता है. आई एम एन एविएशन मैन, 85 बैच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आई गो फॉर द फायर टेंडर कि 9 सेकंड में 120 किलोमीटर कैसे दौड़ लेता है. तो सबसे बड़ी बात है कि यू शुड वेयर द शू. That's great, sir. हर सिलेबस में, हर क्लास में, कोई भी क्लास अनइम्पॉर्टेंट नहीं है. कल को आप कहोगे मैं तो डायरेक्टर बनने आई थी सर, मैं तो डायरेक्शन ही सीखूंगी. यू कैन नॉट बी ए गुड डायरेक्टर unless and until you are a good cinematographer, unless and until you are a good planner, unless and until you are a person who knows every table of the film industry. एक लाइटमैन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी ये है, सिनेमाटोग्राफर. Cinematographer behind the camera. नदीम खान, पार्वती खान हमारी दोस्त है, उसका हस्बैंड नदीम खान, या विनोद पांडे, आपने नाम नहीं सुना होगा, एक बार फिर फिल्म देखिएगा आप. दीप्ति नवल मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, और बहुत बेहतरीन इंसान हैं. तो आप देखिए वो जो विनोद पांडे जो है, ही इज़ ओवर 85, ही इज स्टिल मेकिंग फिल्म्स. और बड़ा अनलकी रहा, लेकिन फिल्म बहुत गजब की बनाई उसने. लेकिन जो भी फिल्म बनाई उसको दिल से बनाया. नदीम खान था, इतना लीडिंग सिनेमाटोग्राफर है, अभी बेचारा बहुत बेड रिडन है, लेकिन बहुत लीडिंग सिनेमाटोग्राफर. मैंने उसके साथ कैमरा में देखा है किस तरह से वो शूटिंग पे जाता था. खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा. शाम बेनेगल हम लोग फिल्म सिटी में बॉम्बे में जाते थे, तो खाना भी हम लोग ऐसे छोले भटूरे वगैरह कुछ 4 बजे खा लिया जब भूख लगी. कोई खाने का टाइम नहीं है. जब B.R. चोपड़ा हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो हम तो उनके घर में पराठे खाते थे आलू के, और हम ट्रायल शो देख लेते थे फिल्म का रिलीज़ होने से पहले. जूतारा रोड पे उनके घर में एक थिएटर है B.R. चोपड़ा की, तो वो अपना वहाँ पर फिल्म को देख लेते थे ट्रायल शो रिलीज़ होने से पहले. खामियां पता लग जाती थी, सेंसर भी नहीं होता था तब फिल्म का, जब तक हम देख लेते थे. लेकिन उसमें हमने देखा कि एक आदमी को, जैसे भारत एक खोज था, उसमें फिल्म एक्टर को उठाना था एक को हाथ में. तो पहले रिहर्सल में एक बोरी उठाई गई. तो पहले बोरी उठाओगे, गिरा दोगे कहीं किसी को तुम. तो रिहर्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Definitely. एक बात और बताऊं, जो अगर फिल्म लाइन जॉइन ना करना चाहते हो तो थिएटर पे जाओ पहले. थिएटर जो है वो देखो ऐसा होता है, फिल्म में तो रीटेक हो जाते हैं. अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं ना, कोई गलती हुई तो ये कह सकते हैं रीटेक कर लेंगे. हाँ जी. इसको हटा दो भाई, दोबारा ले लो इंटरव्यू, ये गलती हो गई. जी. लेकिन थिएटर में, मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पर रहा 6 ईयर्स, तो डॉली बासु मेरी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग, गौतम घोष वगैरह हैं. तो मैं थिएटर जब देखने जाता, शिशिर मंच वगैरह में, कला मंदिर में, तो मैंने कहा यार मुझे एक्टिंग करनी है. अभी इस एज में एक शौक रह गया है. लेकिन एक्टिंग में मेरे इतने दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई ये आसान जॉब नहीं है. बिल्कुल. थिएटर के अंदर कोई रीटेक नहीं होता जब तक आप रिहर्सल के अंदर पूरे खरे नहीं उतरेंगे. अभी आजकल तो क्या है, कविता कृष्णमूर्ति मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और अभी आजकल तो क्या हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी आ गई है जिसके अंदर जो है इतना वो आ गया, 2 लाइन आपने गई, 2 लाइन आपने गई, मिक्सिंग करके वो आराम से बना देंगे. Yes, sir. लेकिन आप ये देखिए कि हमें एक सिंगर बनना है, अगर वो भी फिल्म का पार्ट है. सिंगिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. True.
कितने लोग सिंगल मारे जो हैं शास्त्रीय संगीत का कि राग दरबारी क्या है, गंधर्व क्या है, ये सब राग जो है ना वो बेस होता है म्यूज़िक का। ये जैज़ वेज़ भूल जाएंगे, जब तक किसी को रागों का ज्ञान नहीं है वो अच्छा म्यूजिशियन नहीं हो सकता, वो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। एक आप गानों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगी, आप एक शायर भी हैं, आप एक इंटरव्यू एंड होने से पहले हमें एक शायरी सुना दीजिए, एक आपकी मुझे। अब शायरी तो मैं अदिति पूरे दिन सुना सकता हूँ, मेरी किताबें पढ़ना। एक मैं अपने फेवरेट शेर सुनाता हूँ जो मैंने 19 साल की उम्र में लिखा था। जी प्लीज। अब उस ज़माने में क्या होता है, उस एज में इन्फेचुएशन भी होता है, उस समय बिना प्यार के तो कोई शायरी नहीं होती। बिल्कुल सर। और एक शेर मैंने लिखा था जिसको मेरी हर किताब में वो पहला शेर होता है, और मैं चाहे मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ चाहे एविएशन। तो अब शेर सुनिए उसको। प्लीज सर, एक शेर सुना दीजिए। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। अरे वाह। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, तेरी खोई हुई आवाज़ को आवाज़ देता हूँ। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया सर, दैट वाज अ। तो अब आप ये देखिए कि अब मैं इंटरव्यू आप ले रही हैं और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको मौका नहीं दे रहा पूछने का, ये बड़ी गलत बात है। अरे नहीं सर, बिल्कुल। तो आपको मौका देना है। हमारे सारे व्यूअर्स को, यू गिव अस अ ब्यूटीफुल लेसन, ब्यूटीफुल टीचिंग्स अबाउट द एंटायर फिल्मेटोग्राफी एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। और एक शेर आपको ज़्यादा ज़्यादा तो सुना दूँ, प्लीज प्लीज, बहुत ज़रूरी है वो आप लोगों के लिए। बिल्कुल। वो शेर जो है ना, ताज़ा शेर है। बिल्कुल। हर जज्बे को ज़िंदगी में जुबां नहीं मिलती, हर जज्बे को ज़िंदगी में जुबां नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर माशूक को ज़िंदगी में माशूका नहीं मिलती, यकीन तौर पे। बिल्कुल। हर माशूक को ज़िंदगी में माशूका नहीं मिलती, हर मुसाफिर को ज़िंदगी में मंजिल नहीं मिलती। मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए, मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए, क्योंकि आंसुओं को भी अपनी आंखों में पनाह नहीं मिलती। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। हमें तो अभी बहुत मुझे अच्छा अदिति लगा। बड़ी खुशी है कि आप लोग जो हैं यहाँ फेस्टिवल मना रहे हैं। जी। मेरा तुम सब स्टूडेंट्स को एक मैसेज है, ज़िंदगी में अपने फेलियर से प्यार करो। बिल्कुल। फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, जी। और इतना प्यार करो फेलियर से कि वो सक्सेस में तब्दील हो जाए। Wow, sir. What a beautiful advice. I'm sure all of us are extremely happy and we'll take this advice, sir. We'll incorporate this in our lives. अब आप मेरी किताबें पढ़िए, 39 बुक्स में आपने इतने सारे मुझे आपने शायरी की किताब पढ़िए, एक किताब पढ़िए लिविंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ विद जॉय। उसमें मेरी रिसर्च है, उसमें एक्टर करके एक चैप्टर है, वो पढ़िए। सर मैं ज़रूर पढ़ूंगी and I'm sure all of our viewers would love to read it. Thank you so much guys. You're watching AFT 24/7. I'm Aditi Joshi signing off.